as a senior software developer, what do you do? As a senior software developer role, so my major duties are like हमको किस टेक स्टैक पर काम करना चाहिए कि आगे उस टेक स्टैक की डिमांड रहे मार्केट में, एंड हमको रिसेशन या फिर लेऑफ जैसी चीज फेस ना करना पड़े. जो I would say कि if you are preparing for any interview or new job, you cannot assume anything. कि टियर 3 कॉलेज में रहने से क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज की कमी है? जब हम लोगों ने अपना बीटेक कंप्लीट किया था तो हमारे पर रिसोर्सेज नहीं थे, ओके, बट अभी के लिए जो डिफरेंशिएटर होता है कि वो है like they are very scared of DSA. What is the solution for this? As per my experience, I'll say कि when you are targeting product based company, you must have DSA knowledge. Every child is special. ये कोरी बकवास है. तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है. ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है. अगर प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उन्हें धुन दे. जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जीतू भैया किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, इन द सेम वे हमको भी अपनी लाइफ में एक मेंटर चाहिए होता है जो हमको गाइड करे, हमको बताए कि हमें क्या करना है एंड क्या नहीं करना. ऐसे ही मेरी लाइफ में एक मेंटर है, उनका नाम है मंजीत भैया. ही गाइडेड मी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. मेरी ग्रेजुएशन से लेके मुझे आज तक वो गाइड करते आ रहे हैं. आई एम लकी कि मुझको भी लाइफ में एक ऐसे मेंटर मिले. हेलो गाइज, माय नेम इज जगजोत सिंह. आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years. वेलकम टू Geeks for Geeks, the one-stop solution for all your coding related problems. Today, I would like to invite Manjeet Kumar to this podcast, where we will be discussing his journey from a tier 3 college to a product-based company. अब आगे की तारीफ मंजीत भैया खुद करेंगे अपनी. Hey, hi Jagjot, thank you so much for having me on your podcast, and I'm glad to be here. And I would like to thank GFG as well, because GFG has been my one point solution for every problem since my college days. I have 7 years of experience in IT, and currently associated with the Digital Group company, which is a product-based company. I hold a BTech degree in computer science from Tier 3 college. So after completing my BTech, I got a chance to work in CTech Research and Development. I worked there for 3.5 years. Later, got a chance to work with Genpact India, and I was working in banking domain. And after 2.5 years of service in Genpact, I continued my service in Nucleus, and after that I was associated with the Digital Group as a senior software developer. Wow, this was really a nice introduction. As you just said that you are having an experience of around 7 years in the IT industry, then I can expect that you must be having a package of at least 50 LPA, right? You are absolutely correct. I have one Ferrari in my garage, so but okay, I cannot disclose my actual salary, but with the 7-year experience, I can say my salary lies in between 20 to 30 lakhs. Okay, this is really nice. So it means that those who are watching this video and they are having an experience of 7 years, and if they are talented enough like Manjeet, they can go for this salary as well. So Manjeet, as you mentioned that you are working as a senior software developer right now, ये क्वेश्चन वैसे तो आपसे कई बार पूछा जा चुका होगा, बट मैं आपसे फिर से पूछता हूँ फॉर द ऑडियंस कि as a senior software developer, what do you do? As a senior software developer role, so my major duties are like writing codes. Actually, I'm a full stack developer. I do backend, front end, and also manages backend technologies. We are also in the deployment of the patches as well. So when you are a senior software developer, you should be comfortable working with front end, back end, and you must have some knowledge of application deployment as well. So like as you just mentioned that you are working as a full stack developer, so what is your tech stack right now? Like, are you a MERN stack or do you have some other tech stack as well? I say कि I'm a Java full stack developer. Okay, so if I say कि I'm a Java full stack developer, so I am majorly in the Java tech, because I use Spring Struts like framework. For the database connectivities, we are using Hibernate, JPA, ORM tools. For the front end, we have multiple technologies. Like if you are working on a Struts project, you can use JSTLs. It's a kind of tech stack which can allow you to add Java code inside the JSP pages. Apart this, jQuery, HTML, CSS, all these technologies helpful if you know. राइट. ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने टेक्नोलॉजी बोली, तो आपको क्या लगता है कि इनका फ्यूचर स्कोप क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये बहुत सारे यहाँ पे फ्रेशर्स भी हैं, कुछ एक्सपीरियंस भी है.
एंड दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड वो जॉब्स भी ढूंढ रहे हैं बहुत सारे, एंड इनको चाहिए कि हमको किस टेक स्टैक पर काम करना चाहिए कि आगे उस टेक स्टैक की डिमांड रहे मार्केट में एंड हमको रिसेशन या फिर ले ऑफ जैसी चीज फेस ना करना पड़े। तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि आज की डेट में एक फ्रेशर को किस टेक स्टैक पर काम करना चाहिए? Jagjot, I would say कि if you are preparing for any interview or new job, you cannot assume anything. Just prepare for an interview and prepare for for everything. अगर आप नए टेक स्टैक के साथ familiar हो तो आप काम कर पाओगे, but assume कि नहीं कर सकते कि आपको नया टेक मिलेगा. So because in majority of the projects are legacies. ये 15-20 साल से चल रहे हैं सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में. आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपके बेसिक्स और फाउंडेशंस अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिकॉज कई टेक ऐसा मिलेगा जिसके डॉक्यूमेंटेशन इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं. तो आई विल सजेस्ट कि आप प्रिपेयर करें सारे एडवांस टेक के साथ, बट ओपन रहिए कि अगर इफ इन केस आपको टेक स्टैक लाइक JS स्ट्रट्स मिलता है जिसके डॉक्यूमेंटेशन इजीली अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपके फाउंडेशंस और बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. ओके, तो इन सिंपलर वर्ड्स में ये कह सकता हूँ ना कि जैसे हम बोलते हैं कि एक चलते हुए गुड़ को नहीं छेड़ना चाहिए, वो खराब हो सकता है. सो मंजीत, मैंने देखा है कि कंसल्टेंट की जॉब ओपनिंग होती है एंड स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर वो एक कंसल्टेंट की जॉब प्रोफाइल पे जाएंगे तब उनको कोडिंग की नॉलेज नहीं चाहिए. तो क्या ये सच है कि बीइंग अ कंसल्टेंट यू डोंट नीड एनी कोडिंग एक्सपीरियंस? I don't think so. Actually, like in Genpet, I was a consultant, so I know like what was my duties. Okay, even in the TCS, we have a position called technical analyst. Okay, generally consultant और technical analyst का जो job रहता है, वो generally आपको field expertise provide करने के लिए होता है. If you have a programming experience, so programming knowledge, it's an add-on. एक अगर मैं जनरल बात करूं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं एंड हर साल बहुत सारे बच्चे पास आउट होते हैं, बट क्या इतनी एग्जैक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? नहीं है. हर बच्चा IIT नहीं होता, NITs में नहीं जाता. वो लोग Tier 3 कॉलेज से पास आउट होते हैं, जैसे आप भी हुए, मैं भी Tier 3 से पास आउट हूँ. हम जैसे बच्चे Tier 3 से पास आउट होने के बाद दे डोंट इजीली लैंड अ जॉब इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इन वन गो. लाइक आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज है जो हायर कर रही हैं, दे बिकम अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. बट अगर मैं एक नॉर्मल स्टैट्स की बात करूँ तो बहुत सारा बच्चा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, इन सब कंपनीज में जाके प्लेस नहीं होता. वो सब बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनीज में, TCS, इन्फोसिस, एक्सेंचर जैसी कंपनीज में जाते हैं. ओवरऑल माय पॉइंट इज कि Tier 3 कॉलेज में रहने से क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज की कमी है? If you are coming from institute which is not IIT or NIT ना, so there is a differentiator actually. So जब हम लोगों ने अपना बीटेक कंप्लीट किया था तो हमारे पर रिसोर्सेज नहीं थे. ओके, बट अभी के लिए जो डिफरेंशिएटर होता है कि वो है नेटवर्किंग. सो व्हेन यू कम फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लाइक इन अ Tier 3 कॉलेज, सो the networking is a main differentiator because you don't have success stories or failure stories, है ना. You have to learn by experiment. Okay, but if you're in institute like NITs and IITs, आपके पास सक्सेस स्टोरीज होते हैं, आपको पता होता है कि आपको करना क्या नहीं करना है. अगर आपको जॉब सर्च करना है तो आपके कॉन्टैक्ट्स वहाँ पर होते हैं, आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज वहाँ पर मौजूद होते हैं. इवन बट जब आप Tier 3 कॉलेज से आते हैं तो आपको क्या करना होता है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट से, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं. लाइक आपकी फेलियर स्टोरीज होती हैं, सक्सेस स्टोरीज कम होता है, फेलियर स्टोरीज आपके पास ज़्यादा होती हैं. बिकॉज आप क्या कर रहे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं जस्ट टू मेक योर CV लुक्स गुड. According to me, it is a differentiator. मंजीत, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या रोल मिला था वहाँ पे एंड आपने क्या क्या टेक स्टैक वहाँ पे गेन किया था? अगर एक स्टूडेंट बीटेक कर रहा है देन सेकेंड ईयर में दे हैव टू गो फॉर अ इंटर्नशिप ऑफ 6 वीक्स एंड उसके बाद जब वो फाइनल ईयर में आते हैं तब उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं. दे डू इंटर्नशिप एट दैट टाइम एज वेल. तो आपको कौन सी इंटर्नशिप मिली थी एंड आपने वहाँ पे क्या क्या चीजें गेन करी थी? मैंने अपना फर्स्ट इंटर्नशिप एक स्टार्टअप में स्टार्ट की थी. दे वर डीलिंग विद लोकल बिजनेसेस, ई-कॉमर्स वेबसाइट एंड पोर्टफोलियो वेबसाइट. तो वहाँ पर मैंने अपने UI और PHP स्किल्स पर काम किया और क्लोजली देखा कि हम लोग फ्रंट एंड और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट. ओके, और इसके अलावा जो
कुछ चीज़ें और सीखने के लिए मिली, लाइक कि टेक अपने पैचेस को, अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे डिप्लॉय करना होता है, डोमेन राउटिंग, ये सारी सर्विसेज के बारे में सीखा। ये इसने काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया मेरा। बट मेजर इम्पैक्ट मुझे अपना फर्स्ट जॉब के लाइक व्हेन आई वाज इन सीडैक, सो वहाँ से मुझे अपना पहला आई कैन से कि एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। जैसे अभी आपने अपनी फर्स्ट जॉब के बारे में बात किया, CDAC विच इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ CDAC, आप उसके किस डोमेन में थे एंड वहाँ पे आपका किस तरीके से काम करते थे? I'll say कि if you get an opportunity to work in CDAC, any branch of CDAC, just go for it. When I was in CDAC, so मुझे गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ क्लोजली काम करने का मौका मिला। जनरली पब्लिक हेल्थ केयर के आसपास या पब्लिक वेलफेयर के आसपास ही होते हैं। वी वर वर्किंग विद द इंडियन पार्लियामेंट प्रोजेक्ट। जो मेरा प्रोजेक्ट था जब सीडेक में था, ये उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए था। इट इज इनॉग्रेटेड बाय सीएम पटनायक। जैसे कि मैं Tier 3 कॉलेज से आया, तो काफ़ी सारी डिफिकल्टीज होती थी कोडिंग सोल्यूशन और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। उस वक्त क्या होता था कि लाइक रेफरेंसेस के लिए GFG ने काफ़ी मेरी मदद की। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन जावा प्रोग्रामिंग और फ्रंट एंड, तो आपके पास काफ़ी सारे स्निपेट्स मिलते थे। आपको लॉजिक समझने के लिए या फिर डेटा स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको GFG से मिलता है। तो GFG ने उस वक्त मेरी काफ़ी हेल्प की, बिकॉज एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करने के लिए मेरे पास रेफरेंसेस नहीं थे उस वक्त। तो GFG से मुझे काफ़ी मदद मिला उस वक्त। So like you mentioned that you have been working with some advanced tech, तो आप freshers को क्या suggest करना चाहोगे that how they should start? Okay, so firstly, understand what is the requirement. Actually, so first you have to understand what type of task you want. So if you are interested in the QA, learn some tech related to your testing and other stuff. Like Selenium is there, automation is there. Learn how the black box testing work. Okay, ये सारी चीजें आपको सीखना होगा। बट जब आपका इंटरेस्ट डेटा साइंस में होता है, तो डेटा साइंस से रिलेटेड आपको टेक को सीखना होगा। आपको आप डेटा विजुअलाइजेशन में जाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड टेक स्टैक में जाना होगा। आप एक वक्त पे सब कुछ नहीं सीख सकते। पहला क्वेश्चन आइडेंटिफाई करिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ओके, आफ्टर दैट get a certification in this. One must think you can do it. Multiple projects आपको create करने होंगे। आपको वो डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा कि अगर आप रेज्यूम में उसको मेंशन करते हैं कि आपने इस टेक स्टैक पे काम किया है, तो आपके प्रोजेक्ट्स आपके बारे में बोलेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स में कितना एक्सपर्ट है। ओके, यू हैव टू क्रिएट एटलीस्ट 2-3 प्रोजेक्ट। राइट, I totally agree. And एक सबसे बड़ी चीज जो freshers बोलते हैं, लेकिन when I was a fresher I used to say the same thing कि BTech के एंड में अगर हमको प्लेसमेंट चाहिए then we need only 2 to 3 things. First one is DSA, second one is database, लैंग्वेज की थोड़ी नॉलेज, प्रोजेक्ट्स एंड हमने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनकी नॉलेज। क्योंकि इंटरव्यू में वो पूछ लेते हैं कि आपने अब तक बीटेक में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं एंड हमको याद भी नहीं होते। तो आप डीएसए के बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि डीएसए इज लाइक अ वेरी बिग माइलस्टोन और अ ब्लॉकर फॉर मेनी स्टूडेंट्स। उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे कि क्या वो डीएसए को बिल्कुल एडवांस लेवल तक एम करें या फिर कैसे स्टार्ट करें, कितना करना चाहिए कि उनके इंटरव्यूज क्रैक हो जाए एंड ये ना हो कि ये वाली फीलिंग ना है यार टुमारो इज माय इंटरव्यू एंड आई एम स्केयर्ड लाइक ही मे आस्क मी एनी टेक्निकल क्वेश्चन व्हिच आई एम नॉट अवेयर ऑफ एंड आई विल बी रिजेक्टेड। सो लाइक दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ डीएसए। व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? As per my experience, I'll say कि when you are targeting product-based company, you must have DSA knowledge. ओके, एटलीस्ट आपको 200-300 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी ही चाहिए। प्रोडक्ट बेस्ड में क्या होता है कि उनका खुद का प्रोग्रामिंग टेक स्टैक होता है। यू कैन नॉट जस्ट गो विद योर जावा प्रोग्रामिंग नॉलेज। ओके, दे वांट कि यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज जब भी इटरेशंस चलता है ये आपके काफी वॉल्यूम जनरेट करते हैं और दैट कॉस्ट मनी। सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि ओके, इफ यू आर गुड इन डीएसए इट्स अ एडिशनल एडवांटेज, but you have to learn 2-3 frameworks at least to survive in a service based organization. But for the product based part, at least आपको 200 से 300 competitive programming solutions ठीक से रटे होने चाहिए और आपका algorithm part अच्छे से clear होना चाहिए। So Manjeet, when I was going through your profile, I saw that you mentioned that your job required an experience in React, but you had no experience and you started working on a project just to learn React, and that project turned out to be a SaaS product.
and at the end you were able to get that job as well because of that experience. So मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा that how you were able to land up with this thing, that being a senior software developer in the company, working as a full-time employee, you are having your own product as well which is going to be launched soon. I just want to know about that, how this thing happened. So when I was on job hunt, so my application was getting rejected many times because of the one type React. Unfortunately, I haven't got a chance to work on the React technology, but for now in every job post they are asking experience in React. When I was trying to learn React now, so it is really difficult to mimic the complications which we deal in our real-time projects now. So it all started from a one screen. So I tried to create a application that can create a mock test for me. Okay, it was accepting JSON file, but after investing some time, so I was getting more and more feedback from other colleagues and peers. It's been like 6-7 months, and now application become very huge, and hopefully we will release the application in market in upcoming 1 month. तो यार बहुत हो गया टेक्निकल स्टफ, अब हम थोड़ा सा फन क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि देखते हैं कि मंजीत भैया अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल थोड़े फन क्वेश्चंस में इज ही वेरी एक्टिव और नॉट. लेट्स हैव अ रैपिड फायर राउंड विद यू. तो माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस. I have a different opinion on this. Like when you have your elderly parents at home now, so work from home उस वक्त मुझे लगता है कि वो एक नेसेसिटी हो जाती है. For the freshers, I would say कि in their early career, work from home काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. आपको क्या होगा कि आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा. लाइक 2 या 3 घंटे की मीटिंग्स के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं. सीनियर्स का सपोर्ट नहीं ले सकते हैं. आपको लर्निंग आपकी नहीं होगी. ओके, बट व्हेन यू आर इन ऑफिस you can interact with the people when you have any issue or problem, and you can ask your senior. तो ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है. इवन जब भी कोई टीम मेंबर्स ज्वाइन करता है, मैं उनको बोलता हूँ कि आप इंटरेक्ट करो, कम्युनिकेट करो एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज सीनियर्स को हेल्प नहीं लगता है. वो अपने को कहीं ना कहीं सस्टेन कर सकते हैं, बट फ्रेशर्स के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है. तो इनिशियली फ्रेशर्स को अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आई वुड से कि फॉर 2 years दे शुड choose work from office. Like next question is, how many hours do you spend in a meeting? 2-3 hours in meetings, and for the calls we can say 2 more hours. If not a consultant, what would you rather be? I love cooking actually, so so I'll start my restaurant. Okay, and next one is last song you listen on repeat. Actually, I don't prefer songs. I always prefer instrumental music, old Hindi songs. So You're a early bird or night owl? As you can see, it's 2:14 a.m. So I don't need to answer. Right, we are a night owl. So I think we should end this thing now. Let's conclude. So I hope guys आपको इस वीडियो से एक आइडिया लगा होगा कि इफ़ यू आर अ फ्रेशर what you need to focus on, and if you are going to start your journey in a new company, then what you should focus on. Like along with the tech stack, you have to look for the project as well. Understanding of the project is very necessary. Plus मंजीत भैया ने बहुत अच्छी चीज़ें शेयर करी है हमारे साथ. हम जितना उनसे ज्ञान ले सकते हैं ज्ञान ले लेते हैं. लेट्स कंक्लूड दिस, एंड आई थिंक मंजीत भैया अगर आपको कुछ लास्ट में कुछ बोलना है, यू कैन गो अहेड प्लीज. Firstly, thank you so much for having me on your podcast, Diljot. I'll say कि आपका नहीं होगा तो किसका होगा. अगर आपके efforts रियल है तो probably delay possible है, but destination भी possible है. Right, agreed. So guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, like it, share it, subscribe this channel. Comment section is open for you. You can ask anything you want in the comment section. Manjeet bhaiya will be really happy to reply you all. Thank you so much, and ठोके कोडिंग करते रहो.